Now I request the participants to ask questions to our distinguished speakers of today on today's topic. And I request the participants who are desired to ask questions to raise their hand on their reactions tab, and thereafter I will call them. They will introduce themselves, and thereafter to whom their question is directed, and then they will ask the questions. So first question is Sumit. Sumit, you may ask your question after introducing yourself. Yeah, thank you. Can you please unmute some others so that it's because it's creating some kind of obstruction when I speak. So thank you so much for both of you for enriching talk. I have, if I'm allowed, that I would like to ask two questions from Prakash sir, and a brief comment on Sarma sir's talk. So my first question is, it's a comment come question both, is largely, sir, I share your concern about the challenges police force and other enforcement agencies are facing in this trying times and difficult times, and trying to enforce that the lockdown remains and we remain safe. However, I'm pained to see that you have somehow diluted the abuse and excess of the police under the carpet of trial and error. My point is, isn't police aware or have the experience that how to enforce Section 144? I mean, here in the lockdown, they are extending it at the larger scale. I agree with that part. And it's been there has been a lot of challenges. But if you look at the chilling image, which is coming to the news, and by the way, this is happening now. It's not that this not started coming to the national news, doesn't mean that it's stopped altogether. Now, the problem is, what victim, if I'm a citizen and if I'm receiving this kind of illegal abuse by the police, what kind of rights or what I can do against the police? Who gave them such powers or the permission to punish the citizens? Isn't this role is of the court? You know, at most what they can do is to follow what Section 188 of IPC says, or whatever the power or whatever the sections they are invoking. Now, this is my first question, which largely goes into the broader question. Is now, as you know, that we have separation of the power, and police is directly being controlled by the executive. Do you think that these kind of quasi-judicial power which is being bestowed to the police should be retained? Or I'm not sure about whether anywhere else in the world is the similar kind of practices being followed. So the question is that, should police have this kind of quasi-judicial power, even if they, let's just say, they invoke such kind of mechanism to give soft punishment? Now, switching to Sarma sir. Now, my concern is that I agree with both of you that the police personnel should be extended insurance. But I am pretty much doubtful about giving protection to police personnel under Epidemic Act. For the reason is that police personnel already got the some kind of protection in the IPC, and there's some kind of immunity they have under CRPC itself. And the second point in relation to that is that inclusion will only lead to the more abuse by the police. It won't solve any problem. It won't help them. It will go against the citizenry. Second, as you know, this whole Epidemic Act and is too wide in its scope. And the second question is the last point you mentioned about that court is supposed to do the court is supposed to presume everything, the guilt. If the court is supposed to presume everything, then why one should go to the court in first place? Why let the police give the punishment? Why this mens rea is being presumed by the court
that goes against the basic canons of criminal justice system we have. So I want you both to respond to my question. Hello. Thank you. Hello, Sumit ji. Yeah. First, I request you to introduce yourself. So I'm Sumit and I'm a research scholar. सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब पहले दूंगा। आपने ये बात उठाई कि पुलिस अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है और उसने कुछ ज्यादतियां की, जिसको आपके अनुसार मैंने ट्रायल एंड एरर में जस्टिफाई करने की कोशिश की। आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और उससे कोई मित्र मिलने आया था और उसने देखते देखते ये तस्वीर, एक जगह पुलिस ने कहीं लाठी मार रहे थे किसी को, जो लोग आदेशों का उल्लंघन करके बाहर निकले थे उनको 2-4 लाठी जड़ रहे थे। तो वो अमेरिकन मित्र जो था, उस शिकागो की ये घटना है, उसने मेरे बेटे से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पिटाई कर रहे हैं क्या? तो हाँ, ये हिंदुस्तान में पुलिस को लाठी मिलती है और उससे कभी कभी जरूरत होती है तो लाठी से लोगों को पिटाई करते हैं। तो उस अमेरिकन की ये प्रतिक्रिया थी, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, आई विश द अमेरिकन पुलिस वेर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। कि उसने इस बात की इच्छा जाहिर की कि भगवान, मतलब ये अमेरिकन पुलिस ऐसा क्यों नहीं करती है, क्योंकि अमेरिकन तो मतलब खुलेआम सड़क पे घूम रहा है, कहना मानता नहीं, पुलिस की बात सुनता नहीं, लड़ने को तैयार है, उल्टे राइफल लेके और रिवॉल्वर लेके बाहर निकल आता है। इनकी भी पिटाई होनी चाहिए। खैर, ये तो एक किस्से के रूप में, मैंने उदाहरण के रूप में आपको सुनाया कि बाहर के देश के एक आदमी की क्या प्रतिक्रिया हुई भारतीय पुलिस द्वारा बल प्रयोग की। देखिए, इसको मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता हूँ। जस्टिफाई, ये आपने सोचा हो कि मैंने जस्टिफाई किया, मैंने कभी जस्टिफाई नहीं किया। मैं ट्रायल एरर की तो बात किसी और संदर्भ में उस फ्रेज का मैंने इस्तेमाल किया था कि आखिर इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। पर मैंने ये भी कहा कि इस निपटने के दौरान में कुछ एबिरेशंस हुए, कुछ ज्यादतियां हुई शुरू में, तो बाद में फिर अधिकारियों ने उसको संभालने की कोशिश की और उसकी घटनाएं कम हुई। और ठीक है, मतलब ये अधिकार तो पुलिस, अच्छा, जो मुर्गा बनाने की बात है, जो इस तरह की जो दंडात्मक प्रक्रिया, ऑन द स्पॉट पनिशमेंट की बात है, ठीक, गलत तो जरूर है और एक सामंतवादी ये तरीका है, ये तरीका नहीं होना चाहिए जब ह्यूमिलिएटिंग होता है। पर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से उसको वहीं निपटा दिया, वरना आप ले जाइए थाने में, उसको बंद करिए, लॉकअप में डालिए, फिर वहाँ एक और संक्रमण का एक खतरा पैदा हो जाए। तो उसको वहीं का वहीं निपटा दिया। एक उसको देखने का एक अलग अलग नजरिया है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करते हुए भी मैं कहूँगा कि पुलिस ने मतलब कोई ऐसी जाति बहुत ज्यादा नहीं की है, जाति की, पर आप बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोग कानून को स्वेच्छा से, जिम्मेदारी की भावना से उसका पालन करते हैं? उनके साथ खुद तो जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। नहीं कि आप जरा से पुलिस का बल जरा सा ये हो जाएगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। देखिए, आप आनन फानन में लोग निकल पड़ेंगे, धक्का पेल सब शुरू हो जाएगा, डिस्टेंसिंग सब जहन्नुम में चली जाएगी। तो पुलिस का कुछ मतलब डर तो होना चाहिए। ये जरूर है कि वो डर कैसे हो, उसके बारे में अलग से डिस्कशन हो सकता है। पर यह है, जो पुलिस ने जो बल प्रयोग किया उसको मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। पर यह है कि शुरू में इस तरह की कुछ जातियां जरूर हुई। और आप अधिकार वापस लेने की बात करें तो अधिकार वापस ले लीजिए। मैं आपसे तो वही मैं तो सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था वो आपको मालूम है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुलिस के बारे में बात हो रही थी तो सरदार पटेल ने कहा कि आप इन लोगों के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, ये सब भी बहुत, इसमें सज्जन लोग हैं, इसमें बड़े देशभक्त लोग हैं। कल तक ये ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे, आज ये आप आगे से ये आपकी सेवा करेंगे। और जहाँ तक अधिकार देने की बात है, उन्होंने कहा नहीं, अधिकार तो उनके पास होना चाहिए। बिना, जब तक कोई अधिकार नहीं होगा तब तक कोई कैसे अपने अथॉरिटी इन्फोर्स करेगा। तो अगर आप पुलिस के अधिकारों को कम करेंगे तो उतने ही आप अराजकता का दरवाजा खोलेंगे। आप सोच लीजिए, अगर अराजकता का दरवाजा खोलना हो तो आपके ऊपर है, पार्लियामेंट में लॉ पास करवा दीजिए, हमें क्या पड़ी है। धन्यवाद। सुमित जी, मैं एमएल शर्मा बोल रहा हूँ। आपने 2 पॉइंट्स बताए, क्योंकि और भी बहुत ऑडियंस में है, तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। पहला आपका ये इतराज था कि पुलिस को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, उनको ऑलरेडी लॉ में प्रोटेक्शन है। ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये है कि अगर कोई अटैक करता है पुलिस पे तो इंडियन पीनल कोड में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो जाता है।
और वो बड़े वीक सेक्शंस हैं। ये जो ऑर्डिनेंस के सेक्शंस हैं वो स्ट्रिंजेंट हैं। मैं इसलिए कहा कि उनको भी कवर कर लेना चाहिए, एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एपिडेमिक। आप जानते हैं कौन कौन जगह क्या क्या नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि 4 मंजिले मकानों से ईंटें फेंकी गई हैं, कोई घायल हो गया, कोई मर गया, किसी का हाथ कट गया। देखो, सिस्टम वो है जो वर्क करे, थेराइज करने से कोई मतलब नहीं है। जो सिस्टम वर्क नहीं करता वो सिस्टम ही नहीं है। तो बस इतना ही कह के मैं छोड़ देता हूं, मैं लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा, आपने ये कहा कि प्रिजम्पशन जो है अक्यूज के अगेंस्ट अगर ये है तो ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं, आप अभी बहुत जवान हैं, आपको लॉ पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ें तो उसमें कम से कम 70 सेक्शन प्रिजम्पशन के बारे में ही है। प्रिजम्पशन से ये मतलब नहीं है कि ट्रायल नहीं होगी। आपने एक बात ध्यान से नहीं सुनी, वो ये है कि इट इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन। जब चार्ज लगाया तो कोर्ट ये मानेगा कि हाँ ये चार्ज सही है, लेकिन अक्यूज्ड को ये लिबर्टी है कि वो प्रूव कर दे कि ये चार्ज गलत है। रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इतना कह के मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। आगे सत्य प्रकाश सिंह जी अपना प्रश्न पूछिए, अपने आप को परिचय कराते हुए। सत्य प्रकाश सिंह जी। धन्यवाद सर। मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पढ़ाता हूँ, हिंदी का शिक्षक हूँ। मेरा प्रश्न प्रकाश सिंह सर से है और ये एक छोटी सी जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि कल से ग्रीन जोन में काफी एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं, विशेष तौर पर शराब की दुकानें खुलने वाली हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नई चुनौतियां किस तरह की आने वाली हैं? अगर सत्य प्रकाश जी, अगर आपका इतना ही सवाल है तो ऐसे जब मैंने भी सुना कि क्या क्या छूट दी जा रही है और शराब की दुकानें खुलने की बात आई, तो मुझे भी जरा सा पढ़ के थोड़ा हंसी भी आई, थोड़ा अफसोस भी हुआ, थोड़ा क्षोभ भी हुआ कि मतलब दवा की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, आवश्यक वस्तुओं की दुकान की बात नहीं है, शराब की दुकानों पे पहले जोर है कि पहले इसी को खोला जाए। आखिर शराब की दुकान, मतलब शराब के बिना ऐसा तो नहीं कि आदमी मर जाएगा, शराब तो नशा है। खैर, पर फिर बाद में मैंने सोचा, फिर मेरे समझ में आया कि भाई देखो, सरकारों की रेवेन्यू की जरूरत होगी, शायद पैसे की जरूरत होगी। अब वो आदमी शराब पी के क्या करता है, इससे अब आजकल की सरकारों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए उन्होंने शराब की दुकान खोल दी। अब शराब की दुकान से क्या नतीजा होगा, ये कोई अच्छा नतीजा तो देखिए होता नहीं। ऐसे ही कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है, इस लॉकडाउन के दौरान पारिवारिक हिंसा की घटनाएं, मतलब अब पति पत्नी घर ही में हैं तो पहले तो 10 घंटे 12 घंटे बाहर निकल गए तो ठीक है, 24 घंटे आमने सामने हैं तो बातें भी ज्यादा हो रही है, लड़ाई भी शायद ज्यादा हो रही है, और उस लड़ाई के दौरान हिंसात्मक घटनाएं भी हो रही हैं। तो घरेलू हिंसा की घटनाएं जो पहले से शायद ज्यादा हो रही हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। अब उसमें हिंसा में अब आपने दारू और जोड़ दी, अब भगवान ही मालिक है उसका क्या होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सरकार के सामने जो कंसिडरेशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि उनको रेवेन्यू और चाहिए, इसलिए शराब की दुकान उन्होंने खोल दी है। इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो थोड़ा बहुत होगी ही, खैर पुलिस उससे निपट लेगी, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। पर जो घर के चार दीवारी के अंदर हिंसा होगी, उसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अर्चना वर्मा जी से, वो अपने आप को परिचय देते हुए प्रश्न पूछें। डॉक्टर अर्चना वर्मा। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। My name is Dr. Archana Verma and I am a PhD research scholar. I have done my PhD from BBAU, Lucknow. I just want to ask one question for Prakash sir, that after opening the lockdown, in which way the police and medical staff will be able to deal with this problem, COVID-19, because even in lockdown, people don't want to residing in their homes. But after opening the lockdown, this problem will be the more dangerous, I think. So then how can, hello? Yes, please go ahead. Yes, sir. So I just want to ask this question only.
You see, once the lockdown is lifted, there are going to be problems. There are going to be problems arising out of pent-up feelings, pent-up demands, pent-up all kinds of emotions, all those things. Because several things which have been so far held in restraint because you were confined to the four walls of the house. Now, once people go out, they will say, "Oh, अब इतने दिनों से हम जेल से बाहर निकले, अब तो कुछ मस्ती होनी है, अब ये होना, वो होना." उस दौरान मैं जानता हूँ कुछ अराजकता की घटनाएं होंगी, चाहे औरतों के खिलाफ अपराध की घटनाएं होंगी, पर्स खींचने की घटनाएं होंगी, चेन खींचने की घटनाएं होंगी। एकदम से मैंने जैसा कहा स्पर्ट इन क्राइम होगा और पुलिस से उसे निपटने के लिए उसको पहले से तैयार होना पड़ेगा, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग कुछ आर्थिक व्यवस्था से कुछ जो लोग अपराध करेंगे उससे भी हमें निपटना पड़ेगा। तो लॉकडाउन जैसे ही उठेगा, अब आजकल पुलिस के लिए माने दिक्कत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप संक्रमण का खतरा ले रहे हैं और संक्रमण उसके बाद जान बचेगी कि नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, जान बच भी जाए तो इलाज के दौरान आप परिवार से अलग हो जा रहे हैं, कोई नहीं है, देखने वाला नहीं, आपकी बीवी भी आपसे दूर हो जा रही है, बच्चे भी दूर हो जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अपनी जगह है, परंतु जब तो फिर व्यस्तता पुलिस की हर तरह की समस्याएं एकदम से जैसे होता है ना, कोई चीज दबी हुई थी, इतने दिनों तक हमने दबा के रखा था, एकदम से उसका जी और एकदम से आपराधिक प्रवृत्तियां भी जो अभी तक दबी हुई थी वो सब निकलेंगी। तो हमें और उसके लिए हमें मानसिक साधनों से हर दृष्टि से पुलिस को तैयार रहना पड़ेगा। और आप लोग भी निकलिएगा तो जरा सा सावधानी से निकलिएगा, मतलब पहले से ज्यादा सावधानी से निकलिएगा। अभी फिलहाल तो अपराध कम हो गया है, ट्रैफिक ऑफेंस है ही नहीं, क्राइम फिगर्स डिप कर गई हैं, सब तरह से अपराध कम हो गया है क्योंकि लोग निकल तो पा नहीं रहे हैं, तो इसलिए अपराधी भी अपना दुबके पड़े हैं, किसी न किसी बिल में बैठे हुए हैं। पर जब सब अपराधी भी बिल से अपने बाहर निकलेंगे तो अपराध का एक गुबार फूटेगा, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता की और जो आप चाहते हैं घूमने फिरने की स्वतंत्रता, उसकी थोड़ा सा कीमत देनी पड़ेगी। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा विवेक सिंह जी से कि अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछें। विवेक सिंह। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रकाश सर एंड एमएल शर्मा सर. Sir, basically, I work as a scientist in Ministry of Earth Sciences, and my work is basically prediction of tropical cyclones and all the related areas. So, since I am not the expert of this field, so I may ask some nonsense question also. So, please forgive me for that, sir. First question, my first question is from respected Prakash sir. Sir, as you told that we have threat from China in the terms of security and all those mobile phones and all those things. So I just want to know that what are the reason that why we are still depending on the China for the for the essential things and all the technology, means like phones and all those things, and what the step the India should take in future so that it can reduce its dependency on China. And it could secure our internal matter to itself. Thank you, sir. And the second question I'll ask later. It's not a nonsensical question, Vivek. It's a very relevant question. It's a very topical question. It is a question which should concern and agitate the policymakers. Why are we dependent on China for ordinary items of technology like mobile phones? Now, mobile phones, we have enough technology and we can develop telephones, our own mobile phones. But somehow, just because the phones which come from China have some additional features, just because those are somewhat cheaper, we are preferring those items. I think we must get over this psychology. Whenever I go to market, when I say, look, I'm going to buy an Indian item, even if it is, say, slightly expensive. But the majority of people have a different. जैसे हमें तो सस्ता सामान चाहिए और हमें ज़्यादा फीचर चाहिए, चाइना का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी तो एक पैट्रियोटिक फीलिंग, आखिर हम एक फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक स्वदेशी आंदोलन चला था, विदेशी सामानों के हमने होली जलाई थी। हम होली जलाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम भारतीय सामान को, भारतीय उद्योग को हम बढ़ावा तो दे सकते हैं। थोड़ा महंगाई हुआ तो क्या हुआ। और फिर भारत, एज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, आई वुड से लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दीज मैटर्स. Only recently, I think some 3,000 crores or what, some figure like that I read, that they have
infused into the mobile market, that we should have our own mobile phones within the country and not depend on this Oppo and whatever you have. And I mean, and the common citizen should ask himself, why is he buying a Chinese phone when he can get, I mean, almost as good phone which is India made? But I mean, just because it is slightly cheaper and has some more additional features, we prefer. So I think we need to develop more patriotic feelings in this respect, and we need to encourage our own industry. The pharma industry is a terrible case. We were not dependent on them for anything. I mean, the basic raw materials were with us, the factories were with us. But today, the factory tablets are there, but the raw material, the factories which are producing and supplying raw materials, those have closed. They were shut down because they were getting cheaper raw material from China. Now, that is a short-sighted policy. We have to take a long-term view of these things, and we should not be dependent on China for any kind of strategic items or any kind of those essential items which are important from a security point of view, from privacy point of view. I think we should be more self-reliant. Thank you. Thank you, sir. I may also add something. Now, economic nationalism and technological nationalism is also need of the hour. So we must also emphasize on these aspects also of nationalism. Yes, some kind of economic nationalism, and we must have. I mean, we must take pride in developing our own things, and then look, it is an interdependent world. For certain things, we need not. I mean, we don't have to mind. We should not mind importing them from countries with which we have good relations. But with countries which are all the time sort of needling you, troubling you, harassing you, intimidating you, bullying you. Moment somebody goes to Arunachal, they say, why have you come to Arunachal Pradesh? Why has your home minister gone to Arunachal? अरे तेरे बाप की जमीन है, हम अपने घर में जा रहे हैं यार. कहते नहीं अरुणाचल हमारा है इसलिए तो अरुणाचल में क्यों जाते हैं? ऐसे लोगों से क्यों रिश्ते हम रखते हैं? अभी कल को अभी उन्होंने एक अरुणाचल का नक्शा निकाला है, उनके स्काई मैप या क्या हो, उनकी कोई एजेंसी है, उसमें भी अरुणाचल के हिस्से को कुछ अपना चीन का हिस्सा दिखा रहे. We should have the minimal contact at every level with these people. ठीक है, we can't change our neighbors. You are our neighbor, so we'll have some relations with you. But those relations. Okay, thank you, sir. Now I request Dr. Satya Priya to introduce himself and ask questions. Dr. Satya Priya. Hello everyone. I am Dr. Satya Priya from Department of Sanskrit, University of Jammu, residing at Jammu. आपकी आवाज बंद हो गई. हेलो, आपकी आवाज कट गई. सत्यप्रिया जी फिर से बोलिए, क्या आपका सवाल क्या है? सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. वो कनेक्ट होंगे तो फिर मैं उनके पास दोबारा आऊंगा. श्री अभिमन्यु कुमार जी से अनुरोध है कि वे अपना प्रश्न पूछें. हेलो. हाँ, डॉक्टर सत्यप्रिया जी आ गए हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए. जी, मैं डॉक्टर सत्यप्रिया, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ. मैं एक छोटा सा प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों बहुत सारी कॉन्स्पिरेशनल चीजें सामने आई, जैसे फूड आइटम्स में कुछ मिलावट करने की कोशिश, सब्जियों में या करेंसीज के साथ. तो अब लाइटर ओपनिंग हुई है ऑरेंज जोन में या ग्रीन जोन में. तो इस ओपनिंग के बाद इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा कि जो कॉन्स्पिरेशनली चीजों को अंजाम दे रहे हैं, क्या जो अदर सिटीजन्स हैं इंडिया के, सामान्य नागरिक, उनके समान ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि कॉन्स्पिरेशनली अगर कोई बंदा कोई इस तरह की चीज करता है तो एक छोटी सी अपनी कोशिश से वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर कर रहा है. तो उसका जो अपराध है और एक सामान्य आदमी के अपराध में एक बड़ा फर्क होना चाहिए. तो कानूनी तौर पे उसके लिए क्या प्रोविजंस है कि उसका जो अपराध है उसकी क्वांटिटी में उसको पनिश किया जा सके? क्या इस तरह की चीजें, और हम इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को या अपने दूसरे लोगों को बचा सकते हैं? इस पे आप कानून की दृष्टि से कोई टिप्पणी करें प्लीज. शायद शब्द जो इस्तेमाल कर रहे थे साथ कॉन्स्पिरेसी का, कि मतलब कुछ ऐसे षड्यंत्र है कि
ये बीमारी फैले हिंदुस्तान में, शायद ये आपका संकेत था। जी सर जी। लग रहा है, पर देखिए हम इस आरोप हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो सकता है ये कुछ फोबिया भी हो, दोनों ही बातें हैं। हमें अपना ओपन माइंड रखना चाहिए और आज कोई हम ऐसा काम ना करे जिससे पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़े, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता ऐसे लोग नहीं हैं, पर ऐसे लोग किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, किसी एक वर्ग को स्पेसिफाई करना ठीक नहीं है। मिलावट करने वाले, मुनाफाखोरी वाले हर तरह के लोग हैं इस देश की। अगर आप इतिहास पढ़ें तो इस देश के वासियों ने ही बेचा है। प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई के लोग बात करते हैं, लड़ाई हुई थी, लड़ाई में अंग्रेज जीत गए थे। अरे लड़ाई तो भैया हुई नहीं थी, लड़ाई हुई कहाँ थी? आधी से ज्यादा सेना ने तो अपने हथियार ही नहीं उठाए थे। नवाब के जो सिपाह सलार था उनको खरीद लिया अंग्रेजों ने, और जैसा कि पानीकर ने कहा, प्लासी वाज नॉट ए बैटल, इट वाज ए ट्रांजैक्शन। और जिसमें मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर खुद ही बहुत से लोग हैं जो तरह तरह की गलत काम करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नुकसान पहुंचता है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, अब किसका नाम लेना तो उचित नहीं होगा, दसों नाम मेरे दिमाग में हैं, जो ऐसी बातें करते हैं जो which provides ammunition to people who are opposed to India, who are all the time trying to run down India, who are trying to tarnish the image of India, our own people. So we should be careful of any conspiracy, but we should not sort of launch any campaign against any community, and we should not develop any phobia, and we should I mean, there are bad coins, there are good people, and there are bad people everywhere, and we should keep a vigilant eye, and wherever such instances come to our notice, we should bring that to the notice of the people who can take action against them and see that they are booked and prosecuted. थैंक यू सर। थैंक यू सर अभिमन्यु कुमार जी से निवेदन है कि अपना प्रश्न पूछिए। अभिमन्यु जी। हेलो अभिमन्यु जी, आपको आवाज आ रही है? मैं अभिमन्यु कुमार महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय सरिसब पाही में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूं, हिंदी विभाग में। मेरा प्रश्न शर्मा सर से है। जैसा कि शर्मा सर ने कहा कि डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं या पुलिस पे हमले हो रहे हैं या कोविड-19 जो अभी हमारे देश में वो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको रोकने के लिए जो डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, फोर्स हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके लिए अमेंडमेंट बनाने की जरूरत है, लॉ बनाने की जरूरत है। तो शर्मा सर से मेरा यह भी प्रश्न है कि जो पेशेंट है उनको जगह जगह जहां क्वारंटीन किया जा रहा है, क्वारंटीन सेंटरों में उनको रखा जा रहा है, उन क्वारंटीन सेंटरों में बहुत सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एम्स के डॉक्टरों को पीपीटी किट की कमी के कारण कोरोना हो जा रहा है, तो जब एम्स के डॉक्टरों ने पीएम केयर फंड में अपना 1 डे सैलरी देने से इसलिए मना कर दिया कि वो 1 डे सैलरी पीएम केयर फंड में ना देकर वह चाह रहे थे कि हम 1 डे सैलरी से अपने 1 डे सैलरी से पीपीटी किट खरीदें, है ना? तो पीपीटी, और हम यह स्थिति हम देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एम्स में देख रहे हैं। कि जो प्रखंड स्तर पे, जो जिला स्तर पे जो बहुत सारे रेफरल अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो मरीजों को क्वारंटीन किया जा रहा है, उसमें घोर सुविधाओं का आधार है, अभाव है। वहां बहुत घोर सारी असुविधाएं हैं। पेशेंट जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको लगता है कि वे मर जाएंगे, तब जाकर उनको लगता है कि अब उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, वो यहीं पड़े पड़े मर जाएंगे, तब जाकर वो वायलेट हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं और डॉक्टरों पे हमले कर देते हैं, पुलिस पे हमला कर देते हैं। तो मेरा यह भी सर आपसे आग्रह है कि ठीक है, मैं कहीं से हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें एक पक्ष यह भी देखना होगा कि जो मरीजों के साथ जो क्वारंटीन सेंटरों में जो दिक्कतें हो रही हैं, कि हम कैसे मतलब उनके साथ भी न्याय कर पाएं। पुलिस फोर्स और डॉक्टरों के साथ साथ हम मरीज के साथ भी कैसे न्याय कर पाएं। जी
आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, मैं इसको नकार नहीं सकता। और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है अस्पतालों में भी, डिस्पेंसरियों में भी, क्वारंटाइन सेंटर्स में भी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। एक स्टेज तो ये आई थी कि इटली में जब मरीज आ रहे थे तो वो जिन मरीजों को बचने की उम्मीद नहीं थी उनको वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, और जिनके बचने की उम्मीद थी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी हमारी आबादी है और वेंटिलेटर सिर्फ 12,000 है, बेड सिर्फ जो है हॉस्पिटल बेड 1 लाख के आसपास है। हमारे पास और कुछ होना चाहिए। बेसिकली जो मोटे रूप से आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो कमजोर है, बिल्कुल सही है। ये हम सिर्फ 0.7% अपनी जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करते हैं, जबकि 2 से 3% होना चाहिए। मैं इस बात को नहीं नकार सकता हूँ, लेकिन घर में अगर रोटी की साइज थोड़ी छोटी रोटी हो तो घर के सदस्यों को एक एक टुकड़ा कम खाना चाहिए। अब जब बेड कम है तो उसी से अपने को काम चलाना है, सुविधा कम है तो उसी से अपने को काम चलाना है। हम दूसरे देशों के मुकाबले में गरीब भी हैं, तो इसलिए ये कोई अटैक करने का, मेडिकोस के ऊपर अटैक करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आपका पहला वक्तव्य के हिसाब सुविधा कम है, बिल्कुल सही है। मैं इतना ही कह के इस इशू को छोड़ देता हूँ। धन्यवाद सर। यशवी सिंह से अनुरोध है कि वो अपना प्रश्न पूछें परिचय देते हुए। यशवी सिंह जी। नमस्कार सर, मैं यशवी बोल रही हूँ। मेरा सवाल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। मेरा सवाल आप दोनों से है कि सर, हम ये देखते हैं कि लॉ की जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, जो क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो जनता तक प्रॉपरली ट्रांसफर होना चाहिए पूरी क्लैरिटी के साथ, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी तक भी पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ पाता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज सर, सर्विलांस जो है हमारी कंट्री में, जो लोगों का सर्विलांस है वो थोड़ा वीक है सर, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स पे आप देख लो या कहीं पे भी, वहाँ सर्विलांस थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि कोई अगर ऐसी दवाई खरीदने गया जो कोल्ड एंड कफ के लिए पर उसका कोई सर्विलांस नहीं हो रहा है, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। इसके बारे में सर आप लोग क्या बता पाओगे? इंफॉर्मेशन डिलीवरी, जो लॉ में जो क्लैरिटी है उसकी क्लैरिटी नहीं है सर जनता तक, और उसके वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं सर। हेलो शर्मा जी शायद इसका जवाब देना चाहेंगे। नहीं, लॉ के बारे में देखिए, बात सुनिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आजकल, पहले जो है लॉ की प्रॉब्लम थी जब सारा लॉ किताबों में था। अब तो सारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे आ गया है। जो भी लॉ बनता है वो हमेशा इंटरनेट पे आ जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि आप उसमें पढ़ लेंगे। जो MHA ने लॉकडाउन की इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसको किसी अखबार में छापा नहीं है, क्योंकि वो सारा इंटरनेट पे आ गया। हमने भी वहीं से पढ़ा है। तो लॉ के डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लैरिटी की जहां तक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं ज्यादा बहुत प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन अच्छा हो या बुरा हो, MHA ने जो लॉकडाउन के बारे में इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं, इतनी प्रिसाइजली और इतनी सिस्टमेटिक जारी करी हैं कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप झगड़ा कर सकते हैं कि साहब ट्रेन चलाने की बात, वो अलग बात है, बट सारा कुछ सिस्टमेटिक है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे तो नजर नहीं आ रही है। जहां तक आपका वो ये है कि साहब कोई कफ खरीदने गया, सिरप खरीदने गया, उस पर नजर नहीं है। देखो, दुनिया में सारी चीजें करना, कहीं भी ऐसी चीजें करना कहीं भी संभव नहीं है, और भारत में तो और भी खास तौर से, क्योंकि इंटेलिजेंस में तो हमारे रिसोर्सेज ही बहुत कम लगाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में 2000 आदमी जिले में होते हैं, उसमें 10-15 टूटे फूटे आदमी इंटेलिजेंस में लगाए जाते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ ही क्या है। और स्टेट्स में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट काम नहीं करना चाहता है, प्रॉब्लम है, और हर चीज पे नजर नहीं रखी जा सकती। और मेरे विचार से उसकी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सर्वेलेंस के बारे में जो प्राइवेसी है उसके इंक्लूजन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो मैं बस इतना ही काम कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रियंका वैदिक
अपना प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रियंका वैदिक। सभी को नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि कुछ भारतीयों को विदेशों से उनकी जॉब से निकाल दिया गया था, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने विचारों की वजह से तत्काल प्रभाव के कारण से कुछ पोस्ट कर दी थी। तो आप भी जानते होंगे इस न्यूज़ को। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट आने वाले समय में उनकी जॉब को प्रोटेक्शन देगी? क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? कानूनी तौर से कोई कदम उठाया जाएगा इसके लिए कि उनकी जॉब सुरक्षित रहे? सर, हर कंट्री सॉवरेन है। भारत सरकार आपकी जॉब की गारंटी विदेश में नहीं दे सकती है। विदेश में ही क्यों, हिंदुस्तान में भी नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, पूरी सैलरी दी जाएगी। उसमें भी लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, नौकरी से कम निकाल रहे हैं, लेकिन सैलरी बड़ी बड़ी कंपनी ने आधी कर दी है। अंबानी जो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, हिंदुस्तान का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, उसने कहा है जिनको हम 11 लाख से ज्यादा 15 लाख से हर साल ज्यादा दे रहे हैं, उनकी 15% या कितने % कटौती होगी। तो जॉब प्राइवेट सेक्टर में ऐसे है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन याद रखें, ये ऑन रखा हुआ है अपना। आज हमारे जॉब्स जा रहे हैं और ये 10-11 महीने में नियर नॉर्मेलिटी आ जाएगी और उसके बाद जॉब मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आशावादी होना बड़ा आवश्यक है। जी सर, थैंक यू सर। कृष्णा पांडे जी, अपना प्रश्न पूछें परिचय देते हुए। सर नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार पांडे। सर मेरा एक सवाल है, आप दोनों लोगों से सवाल है, क्योंकि आप लोग काफी काम किए हैं, काफी अच्छे पद पे हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि जब पुलिस व्यवस्था की स्थापना हुई ब्रिटिश शासन में सर, तो उसका उद्देश्य था एक उपनिवेशिक माइंड सेटअप के साथ वो स्थापित की गई। जब स्वतंत्र हुआ सर, तो भी हम लोग उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़े, उसी माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़े। 1861 का नियम कानून आज भी लागू होता है। तो सर आप जैसे शर्मा सर ने कहा अभी कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेज आने वाले हैं, लेकिन जब तक ये माइंड सेटअप जो कॉलोनियलिज्म माइंड सेटअप है सर, जो कि ट्रेवल किया है, इसको हम जब तक हम ना बदले सर, इसको बदलने तब तक कितना इफिशिएंट सर लगता है कि आपका पुलिस व्यवस्था है इस मतलब सिचुएशन को डील करने के लिए? और ये सवाल सर इसलिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा और क्या कहते हैं नियम कानून से ज्यादा ये सवाल थोड़ा माइंड सेटअप का इसलिए है क्योंकि सर आप लोग इसके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पद पे काम किए हैं। तो धन्यवाद सर। देखिए, पुलिस जो काम करती है उसमें दो चीजें बहुत प्रभावी होती हैं। एक ये है कि अफसर कैसा है, उसका स्वयं का संवेदन कैसा है, उसकी जनता के प्रति भावना क्या है, देश के प्रति समर्पण है या नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा जो बहुत उससे भी ज्यादा सशक्त जो दूसरा फैक्टर है वो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे है, संस्थागत व्यवस्था कैसी है। संस्थागत व्यवस्था कैसी है, तो अक्सर हमने ये देखा अनुभव से कि अच्छा अफसर भी होता है, वो अच्छा काम करने में उसके बहुत व्यवधान आते हैं, क्योंकि संस्थागत व्यवस्था में जो परिवर्तन होने थे वो हमने स्वतंत्रता के बाद नहीं किए। वही कॉलोनियल पुलिस का ढांचा चला आ रहा है। इसलिए यदा कदा अच्छे अफसर होते हैं, संवेदनशील अफसर होते हैं, अच्छा काम हो जाता है। परंतु अगर संस्थागत परिवर्तन भी हो जाए तो अच्छे अफसर तो अच्छा काम करेंगे ही, बाकी लोगों को भी अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये आज जो कुछ भी अच्छा काम हुआ है, पुलिस को जो भी अच्छी प्रशंसा मिल रही है, वो इसलिए कि अफसरों में संवेदन है। अफसरों के दिल में दर्द है कि ये लोग तकलीफ में हैं, इनकी मदद करो। हमारा काम नहीं है, फिर भी हम पेट्रोल कार से इनको दवाई पहुंचा रहे हैं, इनको अस्पताल पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी रूप में सबकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है और इस समय हम इनको मदद की आवश्यकता है। भले कि वो हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज में ये सब काम नहीं आता है।
परंतु अगर संस्थागत परिवर्तन तो पुलिस में एक दूरगामी परिवर्तन होगा और पुलिस की कार्यशैली में जो सुधार आप देखेंगे उसमें एक स्थायित्व होगा। अभी तो मुझको सचमुच डर लगता है, आज पुलिस की प्रशंसा हो रही है, फिर 6 महीने 8 महीने बाद जब पुरानी ढर्रे पे काम फिर से करना पड़ेगा तो फिर वही हमको बजाय फूल के फिर पत्थर मिलेंगे, शायद बजाय यू विल गेट ब्रिक बैट्स इंस्टेड ऑफ बुकेज अगेन। तो उस संभावना से मेरा मन हमेशा आशंकित रहता है, क्योंकि संस्थागत परिवर्तन नहीं हुए हैं और वो होने की आवश्यकता है, और इसके लिए फिर आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और आप लोगों को जब पुलिस, आप देख रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, मैंने एक लेख लिखा था, उसमें ये लिखा कि आखिर यही पुलिस, थोड़े दिन पहले आप इसकी आलोचना कर रहे थे कि साहब ये दिल्ली में दंगा हुआ तो इन्होंने ऐसे खराब काम किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ तो इन्होंने ये खराब काम किया, जामिया मिलिया में हुआ तो इन्होंने ये खराब किया। अभी कल ही तक आप आलोचना कर रहे थे और अब आप उन पर फूल बरसा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि पुलिस को अगर फंक्शनल ऑटोनॉमी, एक कार्योत्तर स्वायत्तता मिल जाए तो वो इतना अच्छा काम कर सकती है कि वो आपके जीवन में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। उस स्वायत्तता के लिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए, और जब तक आप सबकी आवाज नहीं उठेगी तब तक ये हमारा जो राजनीतिक वर्ग है वो उस बात को नहीं सुनेगा, और उसको इसी बात में दिलचस्पी है कि पुलिस उसके इशारे पे काम करे बजाय इसके कि जनसेवा की भावना से काम करे। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। विवेक सिंह जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन? विवेक जी संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछिए, क्योंकि हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद महोदय। एक्चुअली मेरा प्रश्न शर्मा सर से है, रिस्पेक्टेड शर्मा सर से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी जो भारत सरकार बोलती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है पर्सनल पीपी किट्स वगैरह खरीदने के लिए, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या हम जो भारत के जो लाइक फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि 2021 में सेंसस का जो मतलब कार्यक्रम होना है, 2022 में जो मैंड मिशन होना है, क्या हम कुछ लाइक उन फंड्स को होल्ड करके वहां से पैसा लेके हम हमारी जो अभी की जरूरत है इसमें कहीं से इन्वेस्ट क्या मतलब कर सकते हैं? अगर मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या आएगी? जो लाइक बुलेट प्रोजेक्ट है, जो ये सब चीजें जो पैसा उसमें अलॉट हो चुका है, उस पैसे को लेके अगर हम कोविड-19 में अगर मान लीजिए किसी तरीके से, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल जानता नहीं हूँ तो मेरा क्वेश्चन लेकिन लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपका प्रश्न मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। देखिए, गरीब हो उसके पास भी पैसे की कमी रहती है, धनवान हो उसके पास भी पैसे की कमी रहती है। हिंदी में कहते हैं 99 की बाकी। किसी के पास 99 रुपया है तो वो तड़पता रहता है, 1 रुपया है 100 बन जाए, फिर ऐसे बढ़ता रहता है। तो यही देश का है। कोई भी देश, धनवान से धनवान देश भी, और हमेशा पैसे की कमी रखता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ये अभी तक कहीं नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा कि भारत सरकार ने ये कहा कि पीपीई किट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये है कि पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं है, और जो चाइना से उपलब्ध हुए हैं वो थर्ड रेट थे, उनको वापस कर दिया गया। अब एक तो ये हुआ। दूसरा आप ये है कि रिसोर्सेस का जो कंट्री में रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल सही है, आपको किसी भी सरकार को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले चीज कौन आनी चाहिए, पहले जान फिर जहान। अब इकोनॉमिस्ट जो है, मैं तो उनको बावला ही समझता हूँ, वो कहते हैं ये अभी खोल दो इकोनॉमी, ये हो गया ये हो गया। अरे भाई, इकोनॉमी किसके लिए है? जब जिंदा रहेंगे तभी तो इकोनॉमी है। पहले तो अपनी जान को बचाओ। और अमेरिका में उन्होंने खोलने की बात करी, खोला और देखिए कितनी कैजुअलिटीज हो गई। इसलिए इसमें पहले जान बचाने की बात है। जिंदा रहेंगे रूखा सूखा खा के तो इकोनॉमी भी फिर ढर्रे पे आ जाएगी। और पैसे की समस्या हिंदुस्तान के सामने हमेशा रहेगी। लोग कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, कब थी मुझे उसका पता नहीं, इतिहास में सिर्फ लिखा ही है, कोई डेटा हमारे पास है नहीं। हिंदुस्तान गरीब रहा है और पोर पॉपुलेशन के कारण अभी भी गरीब है, गरीब रहेगा। जिसके पास पैसा है वो थोड़े से लोग हैं, 1%, 2%, 5%, बाकी सब गरीब हैं। तो जो है उसी से अपने को काम चलाना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लेख पढ़ा था,
सर ने जैसा बताया उसमें संक्षिप्त में यही कहा गया, इस समय लाइफ वर्सेस लिवलीहुड का संघर्ष चल रहा है, तो दोनों में बैलेंसिंग एक्ट करना है। अब हम लोग अंत में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह दिलीप जी, मेरे 2 छोटे से प्रश्न हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। आदरणीय शर्मा सर से मेरी एक जिज्ञासा है कि सर, इधर मैंने जो मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज चैनल ये सब में जो मैंने देखा है, कुछ लेख और मैंने पढ़े हैं, उसमें फेक न्यूज का जो एक मसला है, क्योंकि मुझे लॉ की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सर जिस तरह की स्थिति एक शिक्षक के तौर पे मैं जब देखता हूँ, एक नागरिक के तौर पर, कि जैसे अरुंधति राय, में 2 नाम स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा, द वायर के संपादक का और अरुंधति राय का। कुछ इस तरह के लेख आए। अरुंधति राय के लेख बहुत चर्चा जिसकी रही मीडिया पे, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना वायरस का सहारा लेकर मुस्लिमों को का नरसंहार किया जा रहा है। यह जो शब्दावली है, इस तरह का भारत में कोई मीडिया में इस ऐसे संकट की घड़ी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हो, तो क्या सर हमारी सरकार, हमारा कानून, आखिर क्या समस्या आती है कि ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से स्थितियां सर ऐसी खराब होती चली जा रही हैं कि लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि देश संकट में, यानी नागरिक संकट में है, आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। ये सर एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न आदरणीय प्रकाश सर से भी इसी के साथ में कर देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रकाश सर, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के माध्यम से पिछले दिनों में फाउंडेशन डे पर जो इंडिया इंटरनेट सेंटर में आपके कार्यक्रम को आपका निमंत्रण के बाद सहभागिता का अवसर मुझे मिला था, वहाँ एक प्रतिभागी के तौर पर। जिस तरह से पूरे देश के राज्यों के डीजीपी आए और आप लोगों ने सर बहुत ही गहन विचार विमर्श उसमें चला कि किस तरीके से जो पुलिस है उसको उसकी जो कमियां हैं और उसकी जो अच्छाइयां हैं और उसके कैसे उसको और ताकतवर बनाया जाए, कैसे उसको और उसको सक्षम बनाया जाए, जिससे इस देश में उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं या जो वह काम करना चाहती है नहीं कर, बहुत सारे विचार हुए। उन्हीं विचारों को देखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आज की तारीख में जो पुलिस है वह एक ऐसी अपनी छवि को सामने रखी है, और जो मैं कह रहा हूँ कोरोना वायरस में जितने लोग हैं, 2 बड़ी चुनौती सामने है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसके सर आपके वक्तव्य में चीजें सामने आई भी। अब सवाल है कि आज की तारीख में तो किट डॉक्टरों तक पहुंच चुकी है, पता चलता है उनके सुरक्षा कवच पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी जो सफाई कर्मचारी हैं और हमारी जो पुलिस है, मुझे लगता है सर कि 2-4 घटनाएं जो सुनने में आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में, कि पुलिस के द्वारा इतनी पिटाई की गई कि व्यक्ति की मौत हो गई। मुझे लगता है कि पुलिस 99% अगर अच्छा करती है और एक व्यक्ति की भी अगर इस दौरान अगर पिटाई से अगर उसकी मौत होती है, तो ये पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऐसे में आपकी आवाज कट गई थी बीच में। क्वेश्चन है, आवाज कट गई डॉक्टर राकेश की। हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज सर बीच में कट गई थी, कुछ आखिर के हिस्से आपके हम लोग नहीं सुन पाए। छोटा सा बस 2 ही बातें हैं सर कि सफाई कर्मचारी और जो पुलिस है उसको डॉक्टर की तरह, जैसे आज हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, सुरक्षा कवच, उनको उस तरीके से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे चुनौती और बढ़ने वाली है आफ्टर लॉकडाउन। ऐसे में मुझे लगता है सर कि उनको ध्यान में रखा जाए। तीसरी, दूर दराज के क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा जो कहीं हिंसा हो जा रही है, वो पुलिस की बड़ी एक अच्छाई पर वो भारी पड़ रही है। ऐसे में सर कुछ ना कुछ इस पर विचार। 2 सर मेरे प्रश्न हैं। धन्यवाद सर। सर मैं बहुत संक्षेप में पहले उत्तर दे लूं। आपने जो फेक न्यूज के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। लोग लिखते रहते हैं, कोई उनको लुटियंस वाले कहता है, कोई उनको खान मार्केट वाले कहता है, ये ऐसे ही लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर मोदी विरोधी कीड़ा घुसा हुआ है उनके दिमाग में।
मोदी कितना ही अच्छा कर लें, मैं कोई किसी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं उस पार्टी का हूं, उस पार्टी का हूं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो कॉमनल ढूंढते रहते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिपब्लिक है, तो इसलिए हर देश में ऐसे सिरफिरे लोग हैं। ऐसे सिरफिरे लोगों की इन गतिविधियों को इग्नोर कर देना चाहिए, यही उसका उत्तर है। अगर उसमें आप मुकदमा दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो करेंगे, तो जो चीज इग्नोर हो सकती है, ये कुछ लोग अपना पब्लिक अटेंशन भी तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने दीजिए। मुकदमेबाजी में मेरा कोई ज्यादा विश्वास नहीं है, उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद सर। हाँ सर बोलिए। मैं सिद्धांततः तो सहमत हूँ, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि किसी क्या कहा जाए, नाग कहिए नागिन कहिए, उसको आप बार बार फुंकारने का मौका देंगे तो उसका जो जहर है वो समाज में फैलता है। अब तो खैर कम हो गया है, वरना मुझे याद है अरुंधति राय की जब आर्टिकल लिखती थी तो 20 पेज 24 पेज आउटलुक अपने मैगजीन का 20-24 पेज उनको दे देता था, 24 पेज उनकी आर्टिकल लिखती। आखिर उसको कुछ लोग तो पढ़ेंगे ही। देखिए आज अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़ेंगे उसको। अच्छा अंग्रेजी अच्छा लिखती है, मैं भी उसको पढ़ता था, पर मैं तो उसको खाली लिटरेरी वैल्यू के लिए पढ़ता था, उसके विचारों से बिल्कुल असहमत होते हुए ये लिटरेचर उसमें जो है वो पढ़ लेता था। पर उसका जो जहर है इसी तरह तो जहर फैलता है। मैं और इस तरह का जहर मतलब अगर कभी कभी का हो तब तो उसको इग्नोर किया जाए, पर ये तो रह रह के उसको आता है, वो जहर फैलाती है। राष्ट्रीय स्तर पे भी सर उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। ख्याल में उसको मतलब नजरअंदाज करना भी कहाँ तक उचित होगा, मेरे ख्याल में इस पे जरा गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। और जो लोग कुछ ये समझने लगे हैं कि चूंकि हमारी बड़ी फॉलोइंग है और मैं साहब इंटरनेशनल लेवल की लेखिका हूँ, मुझको अगर कोई कार्रवाई होगी तो 10 लोग उस पे 100 लोग उस पे दस्तखत करके उसका विरोध करेंगे। पर ये विरोध जिसको करना हो करे, पर मेरे ख्याल में जहाँ अकाट्य प्रमाण हो और कानूनी दृष्टिकोण से अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो मेरे ख्याल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको कुछ लोग तो इस देश में उनका ये काम ही है, दस्तखत करके चिट्ठियां लिखो सरकार के खिलाफ। 100 IAS IPS और कौन कौन से रिटायर्ड अफसर उस पर दस्तखत कर देंगे, नेता दस्तखत कर देंगे, नोबेल लॉरेट्स दस्तखत कर देंगे। अब सवाल यह है कि ये लोग क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमांड करते हैं, इसके माने कि हम इनके द्वारा ब्लैकमेल होते रहे, मैं उससे ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ जो भी है बातें डॉक्यूमेंट करते रहने चाहिए, और फिर ऐसा जब केस बनाइए तो ऐसा अकाट्य हो कि फिर इनको अदालत भी उनको इनके प्रति उदार दृष्टिकोण होते हुए भी इनको न छोड़ सके। तो और रही हाँ पुलिस और सफाई कर्मचारियों की बात, तो आपने बिल्कुल सही कहा। पुलिस और सफाई कर्मचारियों का हमें इनके बारे में एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा कि पुलिस अगर हमें इसी तरह से अच्छे काम की अपेक्षा है तो हमें इन्हें क्या सुरक्षा प्रदान करें, क्या क्या सुविधाएं दें, इनके संस्थागत क्या परिवर्तन हो, ये बहुत जरूरी है। और सफाई कर्मचारियों की भी भूमिका बहुत अहम है। वो बेचारे बहुत लो पेड एम्प्लॉयज हैं और ऐसा काम करते हैं जो समाज के बाकी वर्ग के लोग नहीं कर सकते। इनका भी समाज में इनके तनख्वाह के रूप में, इनको सुविधाएं के रूप में सरकार को इनकी तरफ और ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सभा में अन्य विद्वत जन भी मौजूद हैं। अगर कोई विद्वत जन टिप्पणी देना चाहे कार्यक्रम के विषय में तो उनका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रवि शेखर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर रवि शेखर सिंह जी। जी धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर रवि शेखर सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी कार्यरत हूँ। सर कहा जाता है कि जब आपातकाल आती है तो उसी समय व्यक्तियों और संस्थाओं की वास्तव में पहचान हो पाती है कि किसका क्या कर्तव्य रहा है, कैसी भूमिका रही है। तो आज जब हमारे देश के सामने यह विपत्ति आई है, वैसे समय में
जो भारत के विभिन्न राज्यों की जो भी पुलिस के लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर वह बेहद ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज हमारे पुलिस विभाग की वैसी ही प्रशंसा होती है, लोगों के मन में वैसा ही सम्मान है जैसा हमारी भारतीय सेना के प्रति लोगों के मन में सम्मान हुआ करता है। तो सबसे पहले मैं भारतीय पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और सभी लोगों को, सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे में जब कुछ लोग, ऐसी घटनाएं आती हैं कि हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे वह डॉक्टर्स की टीम हो, नर्सेस हो, या फिर हमारे पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, यदि किसी के ऊपर जब किसी प्रकार का जो आघात किया जाता है, चाहे पत्थर फेंका गया, कुछ भी किया गया, तो बड़ा दुखद लगता है। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज का एक बहुत ही सफल वेबिनार रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री प्रकाश सिंह सर का, जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के वर्तमान में चेयरमैन है, उत्तर प्रदेश, बीएसएफ और आसाम में डीजीपी पद को सुशोभित कर चुके हैं। आपने बताया कि वर्तमान में किस तरीके से पुलिस के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, भविष्य में जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद क्या और चुनौतियां होने वाली हैं, जो लोगों के मन में जो दबी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के द्वारा जो और बहुत सारे गलत कार्य होंगे, तो भविष्य में पुलिस के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। आपने बताया कि किस तरीके से पुलिस उसको निपटेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरा जो संज्ञार्थम रिसर्च फाउंडेशन की टीम है और जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रोफेसर एमएल शर्मा सर, जो सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर चुके हैं, सर ने बताया कि जैसे जो घटनाएं हुई हैं विगत समय में पुलिस के ऊपर या किसी के ऊपर जिस प्रकार का आक्रमण ही कहा जाएगा उसको, जिस प्रकार से उनके ऊपर आघात किया गया है, तो सर ने बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए जो पैंडेमिक जो अमेंडमेंट किया गया, जो ऑर्डिनेंस लाया गया उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसमें जो स्पेशल जो साइलेंट फीचर्स हैं, सर ने आपने बताया कि किस तरीके से उनको सेफगार्ड करने का प्रयास किया गया है, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जब तक पुलिस या डॉक्टर की टीम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, वो कैसे सबको सुरक्षित कर पाएंगे या सबकी देखभाल करेंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर एमएल शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आपने हम लोगों को उस ऑर्डिनेंस की जो बहुत अच्छी बातें हैं आपने हम लोगों को समक्ष आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसआरएफ टीम की तरफ से और सभी हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, हम सभी की तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। और मैं एसआरएफ टीम को भी, पूरे एसआरएफ टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष रूप से डॉक्टर राकेश सिंह, श्री मृणाल सिंह, श्री अनुराग झा, श्री दिलीप तिवारी और भी बहुत सारे जो भी इस टीम से जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपनी कीमती समय के द्वारा इस विशेष रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय जो टॉपिक है, इस पर एक वेबिनार आयोजित करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय निकालकर आपने यहाँ पर हम लोगों का सहयोग किया और आपने अपने विचारों को रखा, यहाँ पर ध्यान से सुना आपने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भविष्य में उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही वेबिनार और आयोजित होंगे और हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं फिर से माननीय श्री प्रकाश सिंह सर और माननीय श्री एमएल वर्मा सर और सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आप सबका आभार, विशेष आभार। और इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।